اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی اور بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی اس میں کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اس طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اگر ایک بندہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوشیوں میں یاد رکھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دکھوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ تکلیف میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے ہم بھولتے بھی خوشیوں میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کو یاد کرتے ہو۔ میاں کی نوکری چلی گئی ہم فوراً دعائیں کرتے ہیں، اچھا نمازیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی اور دعائیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، عورتیں پورا سال 2 سال بستر پہ وہ جائے نماز بھی بیٹھ کے گزار دیتی ہیں، اللہ جی بچہ دے بچہ دے بچہ دے۔ ادھر سے بچہ ہوا، ادھر سے الٹیاں شروع ہوئیں تو نمازیں بھی چلی گئی، پھر روزے بھی چلے گئے، پھر بچہ ہو گیا، پھر تو نمازیں ویسے ہی اللہ ماشاء اللہ ہو گئیں کہ جی اب بچے ہیں تو بچوں کی ناپاکی ہے تو اب کپڑے ہیں اور چھینٹے ہیں، اب روز کپڑے کون بدلے، پھر بندہ بھول جاتا ہے اللہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے جب ضرورت تھی تب تو ایسے مانگتے تھے جیسے میرے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا، اور جب مل گئی چیز، آپ کو سہولت مل گئی، آپ کو نعمت مل گئی، ایسے بھول گئے جیسے اللہ سے وہ نعمت مانگی ہی نہ ہو۔ اور یہی حال ہے ہمارا۔ ہم شروع میں تو بڑا دعا کرتے ہیں، یہ اللہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے یہ شکوہ ہے اگر ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے تب تو فوراً آتے ہو، تب تو میں ہی ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ اگر فرض کریں دنیا میں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو لے لیں، اپنے محلے میں سے کسی کو لے لیں جس کا آپ بہت احساس کرتے ہوں، بہت خیال رکھتے ہوں، آپ اس کو ہر موقع پہ اس کا خیال رکھیں، آپ اسے کوئی بات کہیں اور وہ نہ مانے تو انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے اچھا میں نے تمہارے ساتھ کتنا کیا، میں تمہارے ساتھ دل سے یہ کرتی رہی، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا، تمہیں میرا احساس بھی نہیں ہوا، تمہیں ذرا خیال نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگتے ہو تو میں دیتا ہوں اور دیتا ہی رہتا ہوں، اور اگر میں دیتا رہتا ہوں تو تم کم از کم جب اچھا وقت آئے تب بھی تو مجھے یاد رکھو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھا یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں کہ جہاں پر دعاؤں کا ذکر آتا ہے نا کہ ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اور تکلیف میں ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ ماں کی بد دعا نہیں لگتی، اور باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے، ماں کی بد دعا نہیں لگتی، کیونکہ ماں تو ہر وقت ہی بولتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں نا ایسے اکثر لوگ کہتے ہیں ماں کون سا دل سے بد دعا دیتی ہے، جی ماں کی بد دعا نہیں دیتی۔ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے گا۔ اگر ماں بچہ بے شک جتنا مرضی تنگ کرے، ہمارے ہاں اکثر ایک چیز جو میں نے سنا جو مجھے جملہ تکلیف دیتا ہے، مائیں غصے میں بچے کہتی ہیں جا دفعہ ہو مر جا، ٹھیک ہے پرے مر۔ یہ فکرہ اکثر میں نے ماؤں کے منہ سے سنا ہے۔ کبھی بھی نہ کہیں، اللہ کہہ رہا ہے بد دعائیں نہ دو، دیکھیں وہ دل سے نہیں دی جاتی، لیکن اگر وہ گھڑی ہوئی قبولیت کی اور وہ قبول ہو گئی، پھر مائیں بیٹھ کے روتی رہتی ہیں جوان پتر مر گیا، تو کبھی بھی بد دعائیں نہ دیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ پھر اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروں، بس میں تو اسی کی پیروی کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچی۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔
कुछ लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो खुद नहीं बदलते, जो कहते हैं कुरान बदल जाए, हुक्म बदल जाए। अच्छा, आप इसमें ना फतवा बदला दें, इसमें हुक्म बदला दें। आपने और मैंने कुरान की तालीम को नहीं बदलना, हमने खुद को इस सांचे में ढालना है। कुरान तो नहीं बदलेगा, कुरान कभी भी नहीं बदलेगा। हमने जिस बात को नहीं मानना होता, हम कहते हैं अच्छा कहाँ लिखा है कुरान में, दिखाओ ज़रा। कोई नहीं लिखा कुरान में, ये तो आप तो अपने पास से ही कह रही हैं। अच्छा, कहीं नहीं, मैंने तो ये हदीस कहीं नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने फिर कहाँ से पढ़ ली? अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुना, हम तो पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि ये भी है इस्लाम में। अच्छा, हमने तो ये बात कभी सुनी ही नहीं थी। अगर एक बंदे ने बात नहीं सुनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हदीस का हिस्सा नहीं होगी या वो कुरान का हिस्सा नहीं होगी। हो सकता है आपने ना सुनी हो सकता है ऐसा हो कि जो बात आपको बताई जा रही हो, आपने पहले सुनी हो, आपके दिल में ना उतरी हो, आपका ध्यान उस पे ना गया हो। तो कभी भी कुरान की तालीमात के सामने हुज्जतबाज़ी नहीं करनी चाहिए। आप यूँ कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंज़ूर होता तो ना तो मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना ही अल्लाह तुमको इसकी इत्तला देता, क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़ी उम्र के हिस्से तक तुम में रह चुका हूँ। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? सो उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झूठा कहे। यकीनन ऐसे मुजरिमों को फलाह हासिल नहीं होगी। यहाँ मुजरिम किसको कहा जा रहा है? जो कुरान की आयत पे अमल नहीं करेगा। कुरान ने हमें बता दिया ज़िंदगी का तरीका, उठना कैसे, सोना कैसे, बैठना कैसे। इवन सहाबा कहते हैं, लोग मुशरिकीन मजाक उड़ाया करते थे, तुम्हारा नबी कैसा है जो तुम्हें बैतुल खला में बैठने का तरीका सिखाता है, जो तुम्हें बताता है रफ़ा हाजत के लिए कैसे बैठना है। और सहाबा कहते हैं, हम खुशी खुशी कहते हैं, हाँ हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हमारा नबी हमें ये तरीके बताता है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना। और आपने सुनी होगी बहुत मशहूर हदीस, आप अक्सर जो है वो उलमा अपने खुतबे में भी ये बताते हैं कि कब्र में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब उस शख्स को होगा जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता। अगर तरीका रफ़ा हाजत का वो हो जो अल्लाह के नबी की तरफ से बताया गया है, फिर छींटे पड़े ही ना जिस्म पे। तो बताने का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने का मकसद तो यही ना कि हम ज़िंदगी का एक एक हिस्सा संवारें। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ज़िंदगी, मौत, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए हो जाए फिर तो। और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया। और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले से ठहर चुकी है, तो जिस चीज़ में ये इख्तिलाफ करते हैं इनका कतई फ़ैसला हो चुका होता। और अब ये लोग कहते हैं कि इन पर इनके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल हुई। आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर तो सिर्फ अल्लाह ही को है, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। और जब हम लोगों को इस अमर के बाद इन पर जबकि कोई मुसीबत पड़ चुकी हो, किसी नेमत का मज़ा चखाते हैं, तो वो फ़ौरन ही हमारी आयत में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज़्यादा तेज़ है, बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी चालों को लिख रहे हैं। जो दीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, हमने बहुत सी मिसालें देखी जिन्होंने दीन का मजाक उड़ाया और कुरान का मजाक उड़ाया या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में इबरत बना दिया। मुझे याद नहीं है कि किस साल के दौरान कुरान में वो मैंने बात बताई थी, एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था इसी तरह दौरे कुरान के दौरान ही उन्हीं दिनों एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी वीडियो के एक औरतें एहतजाज कर रही थी इंडिया की किसी जगह पर अबाए के ख़िलाफ़ और पर्दे के ख़िलाफ़। तो उन्होंने पेट्रोल हाथ में उठाया हुआ था और गलती से एक ने वो तीली जला दी और वो औरत ऊपर ही, वो पूरी वीडियो में दिखाते हैं कि ऊपर ही जो प्रोटेस्ट करने वाले थे, जो एहतजाज करने वाले थे, उन्हीं में से एक औरत जो बुरके को जलाने के लिए खड़ी हुई थी, वो उसी के साथ खुद जल के गिर गई। तो अल्लाह ताला तो हमें कितनी ऐसी मिसालें, कितनी ऐसे आपने देखे होंगे, किसी ने कुरान के साथ ये किया तो उसके साथ ये हो गया और किसी ने ये किया तो उसके साथ ये हो गया। अल्लाह ताला अपने मुइज़ात आज भी दिखाते हैं, हम नहीं समझते। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी चालों को लिख रहा हूँ, मेरे फरिश्ते लिख रहे हैं, या तो दुनिया में ही पकड़ लूँगा या ढील दे के आखिरत में पकड़ूंगा। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम लोगों के उन चीज़ों से बचाए जो इस तरह के दीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें दूर रखे अल्लाह ताला उन सारी चीज़ों से। और अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे दीन की हिफाजत खुद करें। वो अल्लाह तो ऐसा है कि तुमको खुशकी और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियाँ लोगों के मुवाफिक हवा के ज़रिए से लेकर चलती हैं और वो लोग इनसे
खुश होते हैं। इन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से इन पर मौजें उठती चली आती हैं और वो समझते हैं कि अब हम बुरे आ घिरे। इस वक्त खालिसतन अल्लाह पर एतकाद करके उसे पुकारते हैं कि अगर तू हमें बचा ले हम ज़रूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था इकरमा बिन अबी जहल का वाक़या कि वो जब फ़तह मक्का के बाद कश्ती में गया, जब कश्ती डूबने लगी सब ने कहा कि मोहम्मद का रब हमें बचाएगा। उसने कहा अच्छा मोहम्मद के रब ने बचाना है तो हम भाग किससे रहे हैं। वापस गया और ईमान ले आया। तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा आजमाते हैं आजमाइशें देकर, बस अगर उसमें हम ईमान को समझ जाएं, हम पहचान जाएं अल्लाह को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जब अल्लाह उन्हें बचा लेता है तो वो फ़ौरन ही ज़मीन में सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी के चंद फ़ायदे हैं, फिर वापस तुमको हमारी तरफ ही आना है। फिर हम सब तुम्हारा किया हुआ तुम्हें बता देंगे। बस दुनिया की ज़िंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे ज़मीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाए खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहाँ तक कि वो ज़मीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और उसकी खूब ज़ेबाइश हो गई और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके। तो दिन में या रात में इस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अजाब आ पड़ा, सो हमने उसे ऐसे साफ कर दिया गोया कल वो उसमें मौजूद ही ना थी। हम इस तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं या जो सोचते हैं। एक ऐसी ज़मीन जिसमें किसान ने मेहनत की, हल चलाया, बारिश वक्त पे आई और गंदम, फर्ज करें गंदम ही कर लें, गंदम अच्छी हो गई, होता है ना, आपकी तैयार गंदम है, बारिश हो जाती है, गंदम काली हो जाती है, टिड्डियाँ आ जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। और अल्लाह मिसाल तो दे रहा है ज़मीन की, समझाना आपको और मुझे अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि देखो तुम्हें मैंने पैदा किया, तुम्हें मैंने सारा कुछ दिया, तुम्हें सलाहियतें दी, जवान हो गए, भरपूर जवानी की हालत में बजाय इसके कि हम आखिरत कमाएं हम दुनिया में लगे। और एक वक्त आया अचानक मौत, सडन डेथ। लोग जवानी में दीन की तरफ कम क्यों आते हैं? कहते हैं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, हाँ बुढ़ापे में कुरान ही पढ़ना है। अच्छा बूढ़े होके और क्या करना है हमने, फिर कुरान तब पढ़ लेंगे ना। अगर अल्लाह बूढ़ा ही ना करे, अल्लाह उससे पहले ही ले ले, अल्लाह खड़ी फसल उखाड़ दे, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगी जब हम जवान होते हैं ना, जज्बात ज़्यादा होते हैं, ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, ताकत ज़्यादा होती है, हिम्मत ज़्यादा होती है, जोश और जज्बा ज़्यादा होता है, हर चीज़ उरूज पर होती है, सब कुछ उरूज पर है। और हमने उस उरूज के ज़माने को अल्लाह के आगे नहीं लगाया, अल्लाह के आगे उस वक्त में सर को नहीं झुकाया, अल्लाह क्या पता कब उखाड़ दे। आप रोज़ सुनती हैं कि फ़लाँ का जवान बेटा मर गया और फ़लाँ की जवान बेटी मर गई। अच्छा गए और खड़े थे तो बैठ गए और बैठे तो लेट गए, तो जाते जाते बंदे ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं हम आयात साफ बयान करते हैं उनके लिए जो समझें, जो सोचें। हम में से हर एक को तदब्बर करना कि कोई पता नहीं ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, आज कल कोई पता नहीं, हो सकता है ये रमज़ान आया अगला रमज़ान भी नसीब ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अपने गुनाह बख्शवाने वाला बनाए और हमें अपनी सारी की सारी हिम्मतें और सलाहियतें कुरान पर लगाने वाला बनाए। अल्लाह ताला तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है और वो जिसको चाहता है राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। इस वक्त कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, अब शुक्र अदा करें। अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह जिसे चाहेगा सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देगा। आप और मैं खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घरों से उठा के यहाँ बिठा दिया, अपने कलाम के सामने बिठा दिया, अपने कुरान के सामने बिठा दिया। इसका मतलब है अल्लाह चाहते हैं कि आप और मैं हिदायत पाएं। अब अगर हम रास्ता फेर लें तो फिर हमारी बदकिस्मती, वरना अल्लाह तो चाहता है, इसीलिए तो 10 पारों तक अल्लाह ने हमें चलाया। अल्लाह चाहता है आप और मैं इस कलाम को सुने और इस पर अमल करें। जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए तो खूबी है और मजीद भी, और उनके चेहरों पर ना ही स्याही छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे और ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं और इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुरे काम किए उनकी बदी की सज़ा उसी के बराबर मिलेगी और इन पर जिल्लत छाएगी। इनको अल्लाह ताला से कोई नहीं बचा सकेगा, गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात की
परत की परत लपेट दी जाए। ये लोग दोज़ख में रहने वाले हैं, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। आगे आप इंशाअल्लाह 30वें पारे में जाकर पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। उस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे और कुछ तरोताज़ा होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू ताला जब अपने सामने खड़ा करेंगे तो रोशन और चमकदार चेहरे ईमान वालों के होंगे। अल्लाह कह रहा है जो काफिरों के काले स्याह चेहरे स्याह के स्याह हो जाएं, उन पर परत पे परत लगा दी जाए, अल्लाह तब भी उन्हें जलील और ख्वार करेगा। तो अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह हमें ऐसों में शामिल ना करे। और वो दिन भी काबिल ज़िक्र है जिस दिन हम इन सबको जमा करेंगे, फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो, फिर हम उनके आपस में फूट डाल देंगे। वो उनके शुरका से कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे, सो हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर कि हमको तुम्हारी इबादत की भी खबर नहीं। क़यामत के दिन क्या होगा? मुमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जिस दिन मुजरिमीन को मुमताज़ कर दिया जाएगा। यौमइज़िन यस्सद्दाऊन, लोग ग्रोहों में बँट जाएंगे। अल्लाह ताला पहले तो काफिरों की छांटी करेंगे, काफिर साइड पे हो जाओ, बिल्कुल काफिर और मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे। फिर जो काफिर होंगे ना, जो एक पहले अब जैसे बुतों की पूजा करते हैं या और जिसको पुकारते हैं, वो सबको इकट्ठे कर लेगा अल्लाह ताला, उन सबको खड़ा कर देगा। एक दूसरे से लड़े होंगे, एक कह रहा होगा मैंने कब कहा था कि आना मेरे पास और मेरी कब्र पे सजदे करना, और मैंने कब कहा था आके चढ़ावे चढ़ाना, और मैंने कब कहा था कि आके माथे टेकना। और दूसरा कह रहा होगा आप नहीं कहा था, आपके मुजावरों ने कहा था, तो फलां ने कहा, तो ढिमका ने कहा। उस वक्त जो आपस की लड़ाई होगी उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। अल्लाह कह रहा है सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है गवाह के तौर पर कि हमें तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी। वो ये कहेंगे हमें नहीं पता कि तुम हमारे पीछे तुम क्या करते आए हो, हमें तो पता ही नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पता ही नहीं होगा, वो उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजारी, उन्हें पता ही नहीं होगा पीछे उनके मज़ारों पे क्या हो रहा है, पीछे उनके मकबरों पे क्या हो रहा है। एक बंदा जो दुनिया से अच्छी ज़िंदगी गुजार के गया, हम पीछे उनके साथ क्या कर रहे हैं वो अल्लाह का और उनका मामला है। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जो नेक हैं उनको अल्लाह ताला कुछ नहीं करेंगे, उनको सज़ा मिलेगी जिन्होंने कहा था और उनके पीछे लोग चले। इस मकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ जो इनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ वो बांधा करते थे सब उनसे गायब हो जाएगा। को ज़िंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। तो ज़रूर ये कहेंगे अल्लाह। तो फिर इनसे कहो डरते क्यों नहीं हो। सो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा हकीकी रब है। फिर हक के बाद क्या रह गया सिवाय गुमराही के, फिर तुम कहाँ फिरते जाते हो। इस तरह आपके रब की ये बात कि ये ईमान नहीं लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह को तुम पहचान गए कि सारा कुछ करने वाला अल्लाह ही है, तो फिर अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते, अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आ जाते, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के फर्मा बरदार क्यों नहीं बन जाते। आप अपने बच्चे को बिठा के समझाती हैं कि देखो बेटा अपने बाबा की बात माना करो, देखो पता है ना सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, आपके लिए थकते हैं, आप उनसे बदतमीज़ी करोगे तो उनको तकलीफ़ होगी। हम अपने बच्चों को जैसे समझाते हैं ना, अल्लाह ताला का वही अंदाज़। अल्लाह कह रहे तुम्हारा इतना अच्छा हकीकी रब, और तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस तरफ चले पड़े हो, तुम किस रास्ते पे निकल पड़े हो। अल्लाह ने तो हिदायत को वाज़िया कर दिया। आप यूँ कहिए कि क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे और फिर दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो। आप कहिए कि तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वो ज़्यादा पैरवी के लायक है, या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ते की समझ ना हो। बस तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। और उनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह सबको जानता है। और गुमान क्या, जैसे हम कहते हैं अच्छा हाँ होगा ऐसा,
अच्छा आप कह रही हैं तो फिर ठीक ही कह रही होंगी। अच्छा फिर आपने पढ़ा ही होगा। वैसे मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं होगा। अच्छा मुझे नहीं लगता अल्लाह ऐसा करेगा। मुझे नहीं लगता दीन इतना सख्त है। मुझे नहीं लगता ये होगा। मेरा नहीं ख्याल अल्लाह इतनी सी बात पे पकड़ लेगा। तो ये जो हमारा स्टाइल है ना, ये है गुमान, कि हम फजूल के गुमान में हैं कि मुझे नहीं लगता कि अल्लाह पकड़ेगा। अल्लाह कह रहे हैं कि इनके गुमान हैं। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह की वही के बगैर अपने ही से घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले आ चुकी, और किताब की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया? आप कह दीजिए कि फिर तुम इसकी मिसल एक सूरत ही बना लाओ, और जिन जिन गैरुल्लाह को बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ऐसी चीज़ की तकसीब करने लगे जिसको अपने इहाते इल्मी में नहीं लाए, और उन्हें इसका कोई नतीजा भी नहीं मिला। सो जो लोग इनसे पहले हुए इसी तरह उन्होंने भी झुटलाया था। सो देख लीजिए इन ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे, और बाज़ ऐसे हैं कि इस पर ईमान ना लाएंगे। और आपका रब फसाद करने वालों को खूब जानता है। और अगर आप झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल, तुम मेरे अमल से बरी और मैं तुम्हारे अमल से बरी। अल्लाह कह रहा है कि अगर दावत देते रहें, कोई भी ना सुने, कोई भी ना चले, तब भी अपना अमल नहीं छोड़ना। नेक काम जब शुरू कर दिया तो बस आप कह दें मेरे लिए मेरा अमल, आपके लिए आपका अमल। और जो इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं कि आप बहनों को सुना सकते हैं, गो इन्हें कोई भी समझ ना हो। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हैं, गो कि उनमें बसीरत ना हो। अल्लाह कह रहा है दिल की आंखें नहीं हैं, दिल की बसीरत ही नहीं है। ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और उनको वो दिन याद करवाइए जिसमें अल्लाह उन्हें अपने हुजूर जमा करेगा, तो उन्हें ऐसा महसूस होगा गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे हों और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे हों। बाकी खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वो हिदायत पाने वाले ना थे। आप देखें 60-70 साल की ज़िंदगी दुनिया की, इतनी जीते हैं ना हम, 50-60-70, आजकल मैक्सिमम एवरेज रेट यही चल रहा है, एवरेज एज यही चल रही है। बहुत कम लोग हैं जो 90 क्रॉस करते हैं, 70-80 और कई तो 50 तक भी अब ख़त्म। तो अल्लाह कह रहा है 40-50-60, चलो 70-80 कर लो, 80 साल की ज़िंदगी को क़यामत के दिन हमें ऐसा लगेगा जब पूछा जाएगा कि आप कितना अरसा दुनिया में रहे, तो हशर की सख्तियाँ देखकर इंसान दुनिया की लज्जतें ऐसे भूल जाएगा और दुनिया की ज़िंदगी को ऐसे भूल जाएगा, और वो कहेगा कि शायद हम एक आध घड़ी रहे, शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा, बस इससे ज़्यादा हमें एहसास नहीं होगा। हमें लगेगा शायद हम एक दिन ठहरे, या शायद आधा दिन, शायद सुबह से शाम तक, बस। तो क्यों ना हम उस थोड़ी सी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर चला दें, ताकि पता हो कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाना है तो आखिरत की कामयाबी जो लंबी और दायमी है, हम उसकी तैयारी करें। और जिसका उनसे वादा हम कर रहे हैं उसमें से कुछ थोड़ा सा हम आपको दिखला दें, हम आपको वफा दें, सो हमारे पास तो उनको आना ही है। फिर अल्लाह इनके सब अफ़ाल पर गवाह है, और हर उम्मत के लिए एक रसूल। सो जब उनका वो रसूल आ चुकता है, उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। यानी रसूल भेजकर, हिदायत देकर, पैगाम देकर, फिर अगर कोई नाफरमानी करे तब अजाब आएगा। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो तुम कह दो कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़े का और किसी नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है, जब उनका वो मुअय्यन वक्त आ जाएगा तो एक घड़ी ना पीछे हट सकते हैं और ना आगे से रख सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ जाए या दिन को, तो कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुजरिम लोग जल्दी मांग रहे हैं? क्या जब फिर वो आ गया उस पर ईमान लाओगे?
हाँ, अब माना, हालांकि तुम इसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे ही किए का बदला मिला। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब वाकई में सच है। आप कह दीजिए, हाँ कसम है मेरे रब की, वो वाकई सच है और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। और अगर हर जान जिसने जुल्म या शिर्क किया उसके पास इतना हो कि सारी ज़मीन भर जाए, तब भी उसे देकर वो अपनी जान बचाना चाहे, और तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगे, और जब अजाब को वो देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, बार बार कहते हैं क़यामत कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। जब क़यामत आ जाएगी फिर इनको मोहलत नहीं मिलेगी। और ये जो बात आई ना कि जब उनके पास मुजरिम जब देख लेंगे कि अब फ़र्ज़ करें एक मुजरिम की मौत आ जाए, मुजरिम की मौत आते ही उसे अपना अंजाम नज़र आ जाएगा, पर बाकियों के लिए क़यामत आए ना आए, एक मुजरिम जिसकी सांस निकल रही है, फरिश्ते रूह खींच कर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए तो उसकी क़यामत आ गई ना। उसने जितना अरसा कब्र में रहना, उसने अज़ाब भी बर्दाश्त करना। तो अल्लाह कह रहा है कि अब वो ईमान ले भी आए, जब मौत आ गई तो क्या फ़ायदा, अब का तो मानने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आगे आज हम पढ़ेंगे, फ़िरौन भी ईमान ले आया था, उसका भी ईमान कबूल नहीं किया गया। अभी हम इंशाल्लाह आगे आयतें आ रही हैं वो, कि अगर ईमान का फ़ायदा तब है जब हम पूरे शऊर के साथ, उधर से ज़लज़ला शुरू और उधर से आप ईमान लाना शुरू हो जाएं और अल्लाह मौत दे दे, तो नहीं। अल्लाह ताला को वो ईमान आपसे और मुझसे चाहिए कि हमारे दिलों से अल्लाह का नाम निकले, हमारी रूह अल्लाह को पुकारे। और अल्लाह तो ऐसा है कि ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, यानी कुरान, और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शिफा है और रहनुमाई करने वाली है और रहमत है ईमान वालों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, एंड पे आया रहमतुल लिल मुमिनीन, शुरू में आया या अय्युहन नास, ए लोगो। कुरान पूरी की पूरी इंसानियत के नाम खुला ख़त है, कोई भी इसे सुन सकता है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, कोई भी इससे नसीहत हासिल कर सकता है जो नसीहत लेना चाहे। और सिर्फ नसीहत नहीं है, शिफा है। और शिफा किसकी है? लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे सीनों में है, सीनों के गंद, दिलों के गंद को धोने वाली किताब है। हमारे लिए ये ख़ास रहमत है मोमिनों के लिए, कि मोमिनों को हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, ए अल्लाह आप मुझे सीधे रास्ते की तरफ तौफीक दें। ये हुदल लिल मुत्तकीन है ना, तो ए अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आप मुझे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे दें ताकि मेरे लिए खैर वाज़िया हो जाए, मुझे पता हो मैंने किस तरीके पर चलना है। आप कह दीजिए बस लोगों को अल्लाह के इस इनाम और रहमत पर खुश होना चाहिए, और वो इससे बदरजा बेहतर है जिसे वो जमा कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान है राह हिदायत, मोमिनों के लिए है रहमत, और ये उससे बहुत बेहतर है जो सामान हम अपने घरों में जमा कर रहे हैं, चाहे वो हमारी अगले साल सर्दियों की आने वाली बेडशीट नहीं पड़ी हैं या गर्मियों की बेडशीट्स पड़ी हैं, चाहे वो हमारे अगले सीज़न के कपड़े हैं। बहुत से लोग हैं ना, अगले सीज़न के कपड़े भी लेके एडवांस में रख लेते हैं, सेल लगी हुई है, बाद में क्या पता मिले ना मिले, सस्ते मिल रहे हैं, सीज़न ऑफ हो रहा है, अभी लेके रख लो। अल्लाह कह रहा है घरों में जो सामान जमा कर रही हो उस सब से बेहतर है कि कुरान को रखो और कुरान पे अमल करते हुए चलो। अगर आप और मैं अपने कुरान को अपने दिल में जमा कर लें, देखें घरों में तो हमने सामान जमा किया हुआ है ना, अल्लाह कह रहा है कुरान तुम्हारे दिलों की शिफा है, तो कोशिश करें कुरान को दिलों में जमा करें, कहीं ना कहीं कुरान के साथ जुड़ी रहें। जहाँ पता चले कोई दर्स हो रहा है पहुँच जाएं, जहाँ पता चले कोई कुरान क्लास हो रही है पहुँच जाएं। जब हम कुरान को अपने दिल में जगह देंगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रहमत और इंशाअल्लाह ताला आफियत देंगे। और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका क़यामत की निस्बत क्या गुमान है। वाकई लोगों पर अल्लाह का बड़ा ही फजल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी हाल में हों, आप कहीं से कुरान पढ़ते हों और जो भी काम करते हों, हमको सबकी खबर रहती है। जब तुम इस काम में मशगूल होते हो और आपके रब से कोई चीज़ ज़रा बराबर भी गायब नहीं, ना ज़मीन में ना आसमान में, ना कोई चीज़ उससे छोटी
छोटी और ना कोई चीज़ बड़ी, मगर ये सब किताब मुबीन में वाज़िया है। अल्लाह कह रहा है गैब के ख़ज़ाने हैं अल्लाह के पास। अल्लाह कुरान पढ़ने वालों को भी देख रहा है, कुरान सुनने वालों को भी देख रहा है, कुरान सुनाने वालों को भी देख रहा है। अल्लाह ताला आपके और मेरे चेहरे के तासुरात भी देख रहे हैं, दिल की कैफियत भी देख रहे हैं, दिमाग के ख़यालात को भी जानते हैं कि कुरान सुनते हुए किस आयत पे क्या रद्द अमल आया। कुरान की कौन सी आयत सुन के दिल ने चाहा रो पड़ूं अल्लाह ताला तुझे राज़ी करने के लिए। अल्लाह सब जानते हैं, उसके पास लिखा हुआ। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना ही वो गमगीन होंगे। और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और बुराइयों से परहेज़ करते रहे, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी खुशखबरी है। अल्लाह ताला की बातों में कोई फ़र्क नहीं और ये बड़ी ही कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये कामयाबियाँ नसीब करें कि हमें दुनिया के गम ना लगें और आखिरत की फ़िक्र हमें लग जाए। हम दुनिया के इन गमों से निकल आएँ, हम ये कपड़े, जूते, खाने पीने इन चीज़ों से निकल आएँ, आगे चले जाएँ, हमारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएँ। पकौड़ों समोसों से निकल कर और जूते, कपड़ों और ज्वेलरी से निकल कर हम उस मकाम तक ईमान के तक पहुँच जाएँ। हमारी फ़िक्र हो अपनी इस्लाह, अपने घर की इस्लाह, अपनी औलाद की इस्लाह और अपने मुआशरे की इस्लाह। अल्लाह हमें ऐसा बनाए और आपको इनकी बातें गम में ना डालें। तमाम तर गलबा अल्लाह ही के लिए है। याद रखो, जितने कुछ आसमानों में हैं और जितने ज़मीन में हैं, ये सब अल्लाह ही के हैं। और जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे शुरका की इबादत कर रहे हैं, किस चीज़ की ये इत्तबा कर रहे हैं, महज बेसनद ख्याल की इत्तबा कर रहे हैं। वो ऐसा है कि जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो और दिन बनाया देखने भालने का ज़रिया। इसमें तुम्हारे लिए दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हों। और वो कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, वो तो किसी का मोहताज नहीं, उसी की मलकियत में है जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में। तुम्हारे पास इस पर कोई दलील नहीं। क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मा ऐसी बात लगाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आगे हम सूरह मरियम में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहता है इस बात से कि वो कहते हैं रहमान की औलाद है, करीब है कि आसमान फट पड़े। अल्लाह को ये चीज़ इतनी तकलीफ़ देती है, करीब है आसमान फट पड़े, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं कि ये कहते हैं अल्लाह की औलाद है। अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है। आप कह दीजिए, जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कामयाब ना होंगे। ये दुनिया में थोड़ा सा ऐश है, फिर तुम्हें हमारे पास ही आना है, फिर हम उन्हें उनके कुफर का बदला सख्त अजाब से चखाएंगे। और आप उन्हें नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर सुनाइए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही का नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा भरोसा तो अल्लाह ही पर है। तुम अपनी तदबीर अपने शुरका के साथ पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बायस ना होनी चाहिए। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मोहलत ना दो। ईमान था ना, चैलेंज दिया, जो कर सकते हो कर लो। फिर भी अगर तुम एराज़ ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मा है। और मुझको हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से हूँ। सो वो लोग जिनको झुटलाते रहे, हमने उनको और जो उनके साथ कश्ती में थे उन्हें निजात दी और उनको जानशीं बनाया, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया उन्हें गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कि कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो डराए जा चुके थे। अल्लाह कह रहा है डराया गया, कोई माने या ना माने, आपका मेरा काम है कि आप और मैं अल्लाह के फर्मा बरदार रहें। कोई दीन पर चले या ना चले। देखें, जो चलने वाले थे उन्हें अल्लाह ने कश्ती में बिठाया और बचा लिया, जो नहीं चले उन्हें गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा गर्क हो गए। अब जब वो गर्क हो सकते हैं तो अल्लाह ना करे हमारा अंजाम ऐसा हो। अल्लाह हमें इस कुरान के साथ जोड़े रखे। फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमने और रसूलों को उनकी कौमों की तरफ भेजा, सो वो उनके पास रोशन दलाइल लेकर आए। बस जिस चीज़ को उन्होंने शुरू में झूठा कह दिया, फिर ये ना हुआ कि वो मान लेते। कई लोग होते हैं ना, वो अकड़ में भी नहीं मानते कि पहले जो नहीं माना, अब माना तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी, अब माना तो कितनी इंसल्ट होगी। तो अल्लाह ताला इस तरह हद से बड़े हुए लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है। जब हक सामने होता है, इंसान सच सुनने के बावजूद अमल नहीं करता, अल्लाह कहता है फिर मैं दिलों पर मोहर लगाता हूँ। फिर इन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास निशानियां देकर भेजा। सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब उनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो वो कहने लगे ये तो खुला जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम इस दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो कि ये जादू है। तो वो
हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। और ये भी याद रखिए कि जादू टोना का कोई जो है ना वो इस्लाम में ना ही उसकी कोई गुंजाइश है और ना ही इस्लाम इस चीज़ की देता है। लेकिन जादू की वजह से अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं पहुंच सकती। अगर अल्लाह ने आपको आजमाना होगा तो तकलीफ़ पहुंचेगी, वैसे नहीं। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें उस तरीके से हटाओ जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, और हम तुम दोनों को कभी नहीं मानेंगे। हम भी ऐसे ही कहते हैं ना, अच्छा आप कौन सा दीन बता रही हैं जी, ये तो वो दीन, आप तो कोई नया दीन ले आई हैं। अच्छा मैंने तो शुरू से देखा है, हमारे तो ख़ानदान में शुरू से ऐसा होता आ रहा है, हमारी तो शुरू से नानियाँ दादियाँ, हमारे तो ख़ानदान की कितनी नस्लें यही काम करती रही हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बात शुरू में हर कौम को ना, जब कोई दीन बताने वाला कोई नबी पैगंबर जाता होता था तो सारी कौम जिसने नहीं मानना होता था वो ऐसी बातें करते थे, हम क्यों माने, हमारे तो पिछले ही ऐसे थे, हमारे तो पहले ही ऐसे थे। अल्लाह कह रहा है फिर जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि डालो जो तुम डालने वाले हो। सो जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा ये जो तुम लाए हो जादू है, यकीनन अल्लाह ताला इसको भी दरहम बरहम कर देगा। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम नहीं बनने देता। और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान से साबित कर देता है, चाहे मुजरिम इसको बुरा समझें। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद नौजवान लोग ही ईमान लाए, उसके अलावा उन्होंने किसी ने कहना ना माना। वो भी फ़िरौन से और अपने हुकाम से डरते डरते कि कहीं उनको तकलीफ़ पहुँचाए। और वाकई में फ़िरौन उस मुल्क में ज़ोर रखता था, और ये भी बात थी कि वो हद से बड़ा हुआ था। अल्लाह कह रहा है कि कुछ जवान थे जो उन पर ईमान लाए थे। आगे जब हम असहाबे काफ का वाक़या पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ जवान थे जिन्होंने हक़ का कलमा बुलंद किया। जवानी का ना एक अपना ही नशा होता है। जवानी में इंसान हर वो काम कर जाता है जो सिर्फ इसलिए करता है कि जवानी की एक ताकत होती है। और जो कहते हैं ना हमसा हो तो सामने आए, क्यों कहते हैं कि जवानी में इंसान क्या करता है, जब एक औरत जवान होती है, अगर आप अपनी उम्र का अंदाज़ा करें, एक औरत 25 से लेके 35-40 साल के दौरान क्या करती है, घर भी देख लेगी, जॉब भी कर लेगी, बच्चे भी संभाल लेगी, बच्चे पैदा भी कर लेगी, सारे काम कर लेगी। इसी तरह मर्द है, मॉर्निंग शिफ्ट भी कर लेंगे, इवनिंग भी कर लेंगे। फिर जब जवानी ख़त्म होती है, बुढ़ापे की तरफ आते हैं, फिर किसी को जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, किसी को कमर के दर्द शुरू हो जाते हैं, किसी को अर्कोनिसा हो रहा है, तो किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है, तो किसी को क्या हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे बताना चाह रहे हैं कि जवान लोग ईमान लाए थे, यंग लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अगर हम सर्कल देखें तो शुरू में जो लोग ईमान लाए, हज़रत अली देख लें, हज़रत तलहा देख लें, हज़रत जाफ़र बिन तैयार देख लें, ये सारे के सारे नौजवान थे, सारे के सारे यंग लोग थे। और जवान जो दीन की खिदमत कर सकते हैं वो बूढ़े नहीं कर सकते। बूढ़े बेचारों से तो ज़्यादा टाइम बैठने भी नहीं होता, उनसे तो ज़्यादा बोलने भी नहीं होता, उनसे तो ज़्यादा चलने भी नहीं होता। तो नौजवान नस्ल ने, आपने और मैंने, यंग लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर खुद भी चलना और माशरे को भी लाना। लेकिन वो तभी मुमकिन कि जब हम खुद कोशिश करेंगे। अगर हम खुद दीन पे जम जाएंगे तो फिर कोई हमें उससे हटा नहीं सकेगा। और फ़िरौन वाकई ज़ोर रखता था, लेकिन उसके बावजूद, उसके ज़ोर के बावजूद नौजवान डटे। और मूसा ने फरमाया, ए मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो इसी पर तवक्कुल करो। अगर तुम मुसलमान हो तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया। ए हमारे परवरदिगार, हमें इन ज़ालिमों के लिए फ़ितना न बना, और हमको अपनी रहमत से इन काफ़िर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो, और तुम सब उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो, और नमाज के पाबंद रहो, और मुसलमानों को बशारत दो। और मूसा ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, तूने तूने फ़िरौन को और उसके सरदारों को सामान्य ज़ीनत, ये ज़रा आयत नोट करिएगा, आयत नंबर 88 सूरह यूनुस। मूसा ने अर्ज़ किया, ए हमारे रब, तूने फ़िरौन को और उसके सरदारों को सामाने ज़ीनत और तरह तरह के माल दुनिया में ही दे दिए। ए हमारे रब, तूने इसी वास्ते दिए कि वो तेरी राह से गुमराह करें हमें। ए हमारे रब, इनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे, सो ये ईमान ना लाने पाएँ यहाँ तक कि दर्दनाक अजाब को देख ले। पैसा था, तरक्की थी,
अब देखें, जब पैसा होता है, तरक्की होती है, या फिर जवानी होती है, या खूबसूरती होती है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हों तो हम अल्लाह के ज़्यादा नाफरमान होते हैं। पैसा अकड़ ले आता है, खूबसूरती अकड़ ले आती है, फिर हम शीशा ही देखते रहते हैं 24 घंटे, फिर नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं करता, फिर बस अपने आप को ही संवारने और सजाने में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है, पैसा दिया या जिस्म दिया या खूबसूरती दी या ताकत दी, तो अल्लाह की इताअत पे लगे, फिर फ़ायदा है। हक ताला ने फरमाया, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो, इन लोगों के रास्ते पर ना चलना जिन्हें इल्म नहीं। हमने बनी इसराइल को दरिया से पार करा दिया, फिर उनके पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। डूब रहा है और कह रहा है कि अब मैं ईमान लाता हूँ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया, आल आन, अब ईमान लाते हो? अब जब मौत सर पे आ गई, अब तुम अपनी, पहले तो सारी ज़िंदगी सरकशी करते रहे, फसाद करते रहे, अब तुम आके तो जो है वो ईमान लाते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह ये नहीं मानेंगे, इन्हें तू हलाक कर दे, फिरौन के पास माल है, इस माल से ये हमें तकलीफ देता है, तो इसे हलाक कर दे। उस दुआ के बद्दुआ के 40 साल के बाद फिरौन को और उसकी कौम को हलाक किया गया। और जब डूबने लगा फिर कहता है कि अब मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा, अब का ईमान बिल्कुल काबिल कबूल नहीं, और सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और हकीकत ये कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। और फिरौन की मम्मी आज भी मौजूद है, और क्या कहते हैं, उस पर जितनी मर्जी रिसर्च कर लें, वो अल्लाह ताला ने उसे इबरत बनाया है ना, तो वो क़यामत तक के लिए इबरत ही रहेगा। बाकियों के मुर्दों की हड्डियां गल सड़ जाती हैं, वो गल सड़ भी नहीं सकता। अल्लाह ने उसे इबरत बनाया, और अल्लाह की बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया, हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है, आपका रब उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों में फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। अगर आप इसकी तरफ से शक में हों जिसको हमने आपके पास भेजा है, तो आप इन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई, लिहाजा आप हरगिज़ शक करने वालों में नहीं हों। अगर इल्म वाले शक करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अवाम को तो बात समझ ही नहीं आएगी। अगर एक बात मुझे सही नहीं पता, मैं आपको कैसे बताऊंगी? अगर मुझे ही शक होगा तो फिर मैं आपको तो नहीं कोई बात बता सकती। तो अल्लाह कह रहा है कि इल्म वाले जो एतराज़ करते हैं, इसका फ़ैसला अल्लाह करेगा, और आप उन लोगों में से ना हो जिन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से ना हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, गो उनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख लें। चुनाचा कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उन्हें फ़ायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने रुसवाई के अजाब को दुनिया की ज़िंदगी में उन पर से टाल दिया, और उनको एक वक्त तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। अब यहाँ पर बात आ रही है यूनुस अलैहिस्सलाम की। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैगंबर बनाए गए। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि उनकी दावत से उनकी कौम मुतासिर नहीं हो रही, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ दिन तुम पर अजाब आ जाएगा, और ख़ुद वहाँ से निकल गए। अब जब कौम ने देखा अजाब का बादल सरों पे आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे, औरतें, जानवर सारे जमा हो गए, और सारे एक मैदान में जमा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अब मर्द, औरतें, बच्चे सारे माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनकी आजिज़ी की वजह से, उनकी इस्तग़फ़ार की वजह से उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने अज़ाब को टाल दिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब तो शर्मिंदगी होगी कि मैं वापस जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि तुम तो कहते थे अज़ाब आएगा, अज़ाब तो आया कोई नहीं, अज़ाब तो टल गया। वो इस शर्मिंदगी और इस तकज़ीब की वजह से उन्होंने कौम में जाना पसंद नहीं किया। इस बात को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो एक कश्ती में बैठे, आपने सुना होगा, कश्ती में बैठे, कुरा डाला गया,
हर दफ़ा उन्हीं का नाम निकल आता कि जी कश्ती से उस बंदे किसको फेंके, जी यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंके। सारे कहते नहीं नहीं, यूनुस इतना नेक, इसको क्यों फेंके, फिर कुरा डालो। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। 3 दफ़ा जब ऐसा हुआ तो उन्होंने खुद ही फिर कश्ती से छलांग लगा दी कि ये मेरा अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए हुक्म है कि मैं इस कश्ती से उतर जाऊं। तो आगे देखते हैं इसकी डिटेल। अल्लाह कह रहा है कि हमने उनकी इस्तगफार को कबूल किया और उनको दुनिया से ज़िंदगी उठाने का फ़ायदा दिया। अगर आपका रब चाहता तो तमाम रोए ज़मीन के लोग सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों पर ज़बरदस्ती कर सकते हैं यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं? हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं और अल्लाह ताला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हिदायत लेने के लिए इंसान कोशिश करता है और हिदायत अल्लाह देता है। और आप और मैं हमने देखा कि हम 11 पारे ख़त्म होने वाला है पारा, 11 पारे मुकम्मल होने तक मुझे ऐसा लगता है कि कितनी जिस्म की और रूह की गंदगियाँ उतर गई, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग से साफ़ हो गई, कितनी ऐसी बातें होंगी जिनका शायद पहले पता ही नहीं होगा, अब पता लगा और हम सोच रहे होंगे अल्लाह जी अब पता लगा, अच्छा अब आइंदा ये भी नहीं करूँगी, ये भी नहीं करूँगी। हर बंदा अपने आप को देखता है ना, हर बंदा सोचता है अच्छा अल्लाह जी यहाँ मैं गलत थी, अच्छा मुझे पहले पता ही नहीं था कि यहाँ मैं गलत हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं पता था कोई बात नहीं, अब पता लग गया कोई नहीं। अब जब पता लग गया, अब अगर अल्लाह की मानोगे, अब गौर व फिक्र कर लोगे तो दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, दिल पाक हो जाएगा, रूह पाक हो जाएगी। आप कह दीजिए, तुम गौर करो कि क्या क्या चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं और जो लोग ईमान नहीं लाते उनको निशानियां और धमकियां कुछ फ़ायदा ना देंगी। सो वो लोग सिर्फ उन लोगों के से वाक़यात का इंतज़ार कर रहे जो पहले से गुजर चुके। आप कह दीजिए अच्छा तुम इंतज़ार में रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूँ। फिर हम अपने पैगम्बरों को और ईमान वालों को बचा लेते थे। इस तरह हमारे ज़िम्मा है कि हम ईमान वालों को निजात दें। आप कह दीजिए ए लोगो, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं इन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, लेकिन हाँ उस अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ जो तुम्हारी जान कब्ज़ करता है। और मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं ईमान लाने वालों में से हो जाऊँ और ये कि अपना रुख यकसू होकर उस दीन की तरफ कर लूँ और कभी मुशरिकों में से ना हूँ। और अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करना जो ना तुम्हें फ़ायदा दे और ना नुकसान, और फिर अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। फिर अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ़ पहुँचाए बजुज़ इसके कि कोई उसे दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुँचाना चाहे तो फिर उसके फ़ज़ल को हटाने वाला कोई नहीं। आयत नंबर है 107 और ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों के गलों में तावीज़ लटकाए हुए। कल मैंने एक बच्चे के गले में देखा, मुझे नहीं पता बच्चा किसका था। आयत है 107 सूरह यूनुस। अल्लाह कह रहा है वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचाए, उसे दूर करने वाला कोई भी नहीं, कोई उसको दूर नहीं करेगा सिवाय अल्लाह के। और अगर अल्लाह कोई खैर पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के फजल को हटाने वाला कोई नहीं। आपका और मेरा पुख्ता ईमान होना चाहिए इस आयत पे। कोई तावीज़, कोई जो है वो धागा, चाहे वो बाजू में पहनाएं और गले में पहनाएं या नाफ पे बांधें, आप जहां मर्जी है करें। मैंने खुद कितनी औरतों के डिलीवरी के वक्त नाफ से तावीज़ उतरवाए हैं और मैं हैरान होती थी जब औरतें डिलीवरी के लिए आती थी और मैं कहती थी कि ये क्या है, वो मैम क्या है ना, वो ये ना तावीज़ है तो वो ना, इससे मिसकैरेज नहीं होता। कोई अल्ट्रासाउंड करवाने आ रही, किसी को अल्ट्रासाउंड के लिए लिटाया, ये क्या है, आपको पता नहीं इसमें अल्लाह का नाम है, हाँ जी कुछ नहीं होता, ये ना असल में इसके अंदर बंद है, ये इसके ऊपर ये जो कवर है ना इससे कुछ नहीं होता, ये कहीं पर भी चला जाए, पीर साहब ने कहा कुछ नहीं होता। और नाफ पे तावीज़ बांधे हुए और लिटरली ये इस जगह नीचे, और मैंने खुद, अल्लाह ये मेरे सामने किताब पढ़ी है, मैंने कितनी औरतों के वो उतरवाए। मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारी अक्लें कहाँ चली गईं। अल्लाह सुब्हानहू तआला, वैसे तो हम कुरान का इतना अदब करते हैं जी, कुरान की तरफ कोई पीठ करके भी ना बैठे, कुरान की तरफ कमर भी ना हो, और उसी कुरान की आयत को आपने लिखा हुआ है और उसे आपने अपनी नाफ के पास बांधा हुआ है, चाहे वो जितने भी पर्दों में है तो कुरान ना,
चाहे वो जितने ही कपड़े के अंदर क्यों ना लिपटा हो, है तो कुरान ना। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह अगर फजल देना चाहेगा कोई नहीं हटा सकता, और वो अपने फजल को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है निछावर करता है। वो तो बड़ी ही मगफरत और रहम करने वाला है। आप कह दीजिए, ए लोगो, तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से पहुंच चुका, इसलिए जो शख्स सीधे रास्ते पर आ जाए तो वो हिदायत पर है, और जो शख्स बेराह रहेगा तो उसका बेराह होना मैं तुम पर मुसल्लत नहीं किया गया। आप इसकी इत्तबा करते रहिए जो आपके पास वही भेजी गई, और सब्र कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो फैसला करने वालों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। आपका और मेरा काम है सिर्फ कुरान के पीछे चलें, जो कुरान कहे वो माने। आगे सूरह शुरू हो रही है, सूरह हूद, और सूरह हूद 123 आयात हैं, 10 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूरह हूद के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर सिद्दीक आए और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे आज बूढ़े बूढ़े नज़र आ रहे हैं, आज मुझे आप पे बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हूद और उसकी बहनों ने बूढ़ा कर दिया। सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह अम्मा यतसालून, सूरह नबा और सूरह शम्स, ये 4 ऐसी सूरतें आती हैं। 5 सूरह कुव्विरत, अशम्स कुव्विरत, 4, ये 4 ऐसी सूरतें आती हैं। इन सूरतों के बारे में आता है कि इनमें आने वाले अहकामात की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, उस फ़िक्र ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह करे ये सूरत पढ़ के हमारी भी फ़िक्रें जागें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयात मुहकम की गई हैं, फिर साफ साफ बयान की गई हैं एक हकीम और बाखबर की तरफ से, ये कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो, मैं तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ कराओ और उसी की तरफ मुतवज्जे रहो। समझ आ गई? अल्लाह कह रहा है कि इबादत अल्लाह की करनी है, डराने वाला वो है, तो तुम क्या करो, तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ़ करवाओ, इस्तगफार करो, माफ़िया मांगो। और रमज़ान है और आप और मैं जानते हैं रमज़ानुल मुबारक में तौबा के दरवाज़े खुल जाते हैं। हर वक्त ही खुले होते हैं, लेकिन रहमत के दरवाज़े ज़्यादा खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। अल्लाह हमें इस काबिल करे हम अपने आंसुओं से अल्लाह को राज़ी कर सकें, और वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। और अगर तुम एराज़ करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा है। माफ़ी मांगनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर जो है ना वो गुनाह से इस रमज़ानुल मुबारक बचा ले। अल्लाह कह रहा है तुम्हें अल्लाह ही के पास जाना है, और वो हर चीज़ पर पूरी तरह से कुदरत रखता है। याद रखो, वो लोग अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सकें। तो याद रखो, वो लोग जिस वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वो उस वक्त भी सब जानता है, जो कुछ वो छुपाते हैं, जो कुछ वो जाहिर करते हैं। यकीनन अल्लाह दिलों के अंदर की बातें जानता है। अल्लाह कह रहा है दिलों की तह तक की बातें भी मुझे पता हैं। तुम अपने अंदर, एक बंदा कंबल के अंदर अपने बिस्तर में अपने कपड़े को ठीक करता है, आप कंबल में लेटी हैं, रज़ाई में लेटी हैं, और आप अपनी कमीज़, हम करवट लेते हैं तो बाज़ दफ़ा शर्ट टेढ़ी हो जाती है तो हम हाथ से उसको ठीक कर रहे होते हैं। अल्लाह कहता है मैं वो भी देख रहा हूँ, और मैं तुम्हारी दिलों की बातें भी जानता हूँ। बस करना क्या है, अमलन मोमिन बनना है। बस अब ये जो कुरान सीखा है उसे अमल में ले आओ। ऐसा ना हो कि किसी को बताते हुए कि तुम मुसलमान हो तुम्हें शर्मिंदगी हो। इलामा इकबाल ने कहा था ना, गूंगी हो गई आज कुछ ज़ुबान कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। तौफीक ना हुई मुझे एक वक्त नमाज की, और चुप हुआ मुअज्जन आज़ान कहते कहते। किसी काफिर ने जो पूछा कि कौन सा महीना है, शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। ये जो लोग रमज़ान में रोज़े छोड़ देते हैं ना, कोई पूछता है ठीक है कौन सा महीना है जी, रमज़ान है, तो वो कहते हैं कि शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। और मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा,
اس نے پوچھ لیا کہ یہ الماری میں جو کتاب پڑی ہے اس پہ اتنی مٹی کیوں لگی ہے؟ میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ ہمارے بھی قرآن کا یہی حال ہے، کتنے قرآن الماریوں میں کتنے سالوں سے پڑھے، کسی کو کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، اور اقبال کہتے ہیں مجھے ایسے لگا، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ بس اس نے مجھے حیوان نہیں کہا، اس کی نظروں کے تیر سے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے کہنا یہی چاہتا ہے کہ تم اچھے انسان ہو۔ آج کل وہ ایک پوسٹ چل رہی ہے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، کہ جاپانی لڑکی کہتی ہے کہ مسلمان، ایک بندہ کہتا ہے کہ اچھا تم مسلمان ہو، تم روزے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں روزہ برائی سے بچاتا ہے، اور روزے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ پوری ایگزیکٹ کیا ورڈنگ تھی؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جاپانی لڑکی کہتی ہے کہ تم گناہوں سے بچے ہوئے ہو، تو وہ کہتا ہے ہاں یہ رمضان ہے، تو رمضان میں ہم نا ہر بری چیز سے بچے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے تم تو بڑے فائدے میں ہو، تم لوگ 1 مہینہ بچتے ہو، ہم تو 12 مہینے بچتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا حال وہ، اللہ ہمیں 12 مہینے والا مسلمان بنائے، 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن والا مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارا دل کرے نیکی کرنے کو، ہم دل سے جو کریں ہم دل سے کریں، ہم اس لیے نہ کریں کہ کوئی کہے گا کہ اچھا پورا مہینہ دورہ قرآن کر کے آئی ہے تو اب نیکی بھی نہیں کرتی، اب یہ بھی نہیں کرتی۔ نہیں، ہماری سوچ خالصتاً اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشی ہو، اللہ ہمیں اپنی خوشی سے نیکیاں کرنے والا بنائے، اور جو جو نیکیاں ہم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان پہ ہمیں استقامت دے، تھوڑی ہوں لیکن اچھی ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب